जय मसीह। All praise the Lord to all of you. आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? Yes, bhai. हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 Read से 11। John's Gospel, chapter 13, 1 to 11. John 13, 1 to 11. यूहन्ना 13, 1 से 11। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वे रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमून के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तो तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, तो वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave the world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin, began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then, Lord, Simon Peter replied, Not just my feet, but my hands and my head as well. Jesus answered, Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said, Not everyone is clean. आइए हम प्रार्थना करें। Shall we pray? प्रभु, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हुए आए हैं। Dear Lord, we come to you by taking your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. आप हमें धोएं और पवित्र करें Wash and cleanse us in your blood. और पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल आप लें। And Holy Spirit, take full control. मनुष्य और मनुष्य की बुद्धि और विचार और उसका टैलेंट सब क्रूस के पीछे छिपाया जाए। Man's thoughts, imagination, talent, all may be hidden behind the cross of Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमित रूप में दिखाई दे। Our Lord Jesus Christ may be seen in all his glory. उसकी ज्योति में हम अपने आप को देख सके। And in his light we may be able to see ourselves. और एक नई रीति से हम पवित्र किए जाएं। And be made holy in a new way. हमारी सहभागिता फेलोशिप आपसे एक नई ताजगी पाए। Oh, this fellowship may find new refreshing in you. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हियाव दें, पुकारने का शब्द दें। The boldness to speak and a voice to cry out. और लोगों के जीवन में अनंत काल का परिवर्तन आए। And bring eternal changes in the lives of your people. और मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर दिखाई दे। And my Lord Jesus Christ may be seen exalted above all. जितने लोगों को ले आए उनके लिए धन्यवाद हो। We thank you for all those whom you have gathered for this meeting. जो YouTube पर, फोन पर, जहां-जहां है उन सबको वास्तविक आशीष मिले। Those who are joined via YouTube, via phone, Lord bless all of them.
और जो बाद में सुनेंगे वो भी आशीषित हो। and bless those who will hear later. प्रभु दया कर, Lord, have mercy. शत्रु की देखी अनदेखी शक्ति ये सुनाम बांध। Bind the seen and unseen powers of Satan in Jesus' name. हम दोनों भाइयों को एक मन करें, Make us both brothers of one heart. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. अब पहले पद में पढ़ते हैं, We read in the first verse. और प्रभु ने जान लिया कि उसका समय आ गया है, The Lord knew that his hour had come, और ये प्रभु की आखिरी रात है मौत से पहले, and this is the Lord's last night before the end. और क्रूस पे जाने के सिर्फ 18 घंटे बचे हैं। Just about 18 hours left for him to go to the cross और of उसने कहा Calvary. वो एकदम आगे देख लेता था। He was able to see way ahead. हम 18 मिनट नहीं देख सकते, वो 18 घंटे देख रहे। We can't see 18 minutes. He could see 18 hours ahead. हाँ, उसने कहा मेरी घड़ी आ पहुंची है, मुझे जगह छोड़कर बाप पिता के पास जाना। He said, my hour has come. It is time for me to leave the world, go back to my father. वो सब कुछ देख लेता है। He is able to see everything. और फिर एक बात कहता है, And then nothing he says. कि उसमें लिखा है जैसा प्यार वो करता था अंत तक वैसा ही प्यार करता रहा। As he used to love them, he continued to love them till the end. हाँ, जैसा प्यार करता था अंत तक वैसा ही करता रहा। As he loved them before, he continued to love them even to the end. हाँ, देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपनी खाल के नीचे परमेश्वर था। Below his skin, the Lord Jesus Christ is God. हाँ, उस खाल के अंदर परमेश्वर था। In that body, in that skin, it was God. प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की सारी सुंदरता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। All the beauty of God is in the Lord Jesus Christ. परमेश्वर की सारी सामर्थ यीशु मसीह है। All the power of God is Jesus Christ. परमेश्वर का सारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। All the love of God is Jesus Christ. मूसा ने पूछा तेरा नाम क्या है? Moses said, what is your name? उसने कहा मैं हूँ, उससे ज्यादा नहीं प्रकट किया। He says, I am, nothing beyond that did he reveal. हम जैसे वो प्रकट किया कि उस परमेश्वर का नाम यीशु है। To all of us, he has revealed the name of that God is Jesus Christ. और उसने बताया उसी के नाम में उद्धार है। And there is salvation only in his name. और यूहन्ना 14:9 में कहता है, It says in John 14:9, अरे जिसने यीशु को देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। he who has seen Jesus has seen God. और यीशु ने ही परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है। It is Jesus only who has revealed God to us. वो अपनों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा। He continued to love his own till the end. हाँ, कैसा प्रेम? How किससे प्रेम? and with whom? अभी 18 घंटे में जो धोखा दे जाएंगे, एक भी चेला ऐसा नहीं हुआ जो धोखा दे के नहीं जाएगा। In 18 hours they will deceive, they will forsake him and run away. Not one will stand with him. हाँ, उसने हर एक धोखेबाज की शक्ल देखी और फिर प्यार करता रहा वैसे। He saw the face of each deceiver and continued to love them. मेरी और आपकी असली शक्ल देखी फिर भी प्यार करता रहा। He knows my condition, your condition. Truly, he still loves us. हाँ, यहूदा स्कूती जो था वो पीछे प्रभु यीशु मसीह के बैग लेके थैला लेके चलता था और था चोर, प्रभु जानता था। Judas Iscariot used to follow the Lord carrying a bag in which was the money. The Lord knew he is a thief. पीटर बहुत गुस्से वाला और बड़ा बलबोल आदमी था। Peter was a man with a short temper and lot of energy. वो झूठा था। He was a liar. प्रभु ने कहा अभी झूठ बोलेगा तू। Lord said he's going to speak a lie now. हाँ, प्रभु जानता था। The Lord knew. बता रहा था। He was telling. मानने को तैयार नहीं था, जिद कर रहा था, नहीं नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो प्रभु? And the Lord was telling, but Peter was not willing to accept it. प्रभु आप गलतफहमी में हो। Lord, you are having a मैं तो जान misconception. दे सकता हूँ, जान। You know, I can give my life for you. क्योंकि प्रभु वो कह रहा 3 दफा तो झूठ बोलेगा अभी, वो मक्कार भी है। And the Lord said, you will deny me thrice. हाँ, ऐसे आदमी को जो आपको धोखा दे आप प्यार करते रहोगे? Can you love a man who will deceive you like this? वो आखिर तक वैसे को प्यार करता। He loved him till the end. यूहन्ना और याकूब में बड़े बनने की बड़ी इच्छा थी।
The great desire for John and James to be big, प्रभु से प्यार करता था। the Lord loved them. और थोमा उस पर शक करने वाला आदमी था। Thomas was a man who doubted the Lord. हाँ, प्रभु जानता था ये मुझ पे भी शक करता है। The Lord knows he doubts me. हाँ, ये किसी को शक किए बगैर नहीं छोड़ता। He doesn't leave anyone without doubting that प्रभु person. से प्यार करता था। But the Lord loved him. मती बोलता ही नहीं था प्रभु से। Matthew did not speak. अरे एक भी परफेक्ट आदमी, एक भी इस मंडली में सही आदमी नहीं था। Not even one perfect person in this assembly, सिर्फ मसीह को छोड़ के कोई कुछ नहीं था कर। except for Christ. प्रभु प्यार करता था उस मंडली। But the Lord loved that assembly. प्रभु मुझे और आपको प्यार करता है। The Lord loves you and me. मैं धोखा दे दूं मगर वो अंत तक मुझे प्यार करता रहेगा। I may deceive, but he loves me till the end. वो अपने लोगों से जो जगत में थे, अपना जिन्होंने अपना लिया था, And he loved those who were his own till the मेरे end. मेरे कर्मों से नहीं, मेरे कर्मों के कारण नहीं। Not by my works. परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। The Lord never changes. हाँ, इसलिए उसका प्यार बदलता नहीं है। That is why his love never changes. मुझे तो हालात बदलते हैं। Circumstances change me. अगर मेरी बीवी अभी कुछ मेरे विरुद्ध में बोल दूं, देखो मैं कैसे बदल जाऊंगा प्रचारक से और क्या दिखाई दूंगा। If my wife will speak anything against me now, just see how quickly I change from a preacher इतनी to what जल्दी I'll बदलूंगा, become. इतनी जल्दी Very, very quickly सारा I'll change. प्यार बदल जाएगा। All my love will change. बाद में पहले ही कुछ कुछ कहता रहूं मगर फिर Whatever I may say before, तो ये हमारी हालत है। this is our condition. हाँ, प्रभु जानता था ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोलेगा और भाई की जिद कर रहा था। प्रभु नहीं तो आप गलत है, मैं हो ही नहीं सकता, जान दीजिए। And Peter was being stubborn. Not you are wrong. I can't deny you. हाँ, बहस करता प्रभु। He continually arguing. प्रभु कह रहा तुझे जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ, तेरी असलियत जानता हूँ। Lord said, I know you. I know your inside reality. अरे तू कितना धोखेबाज है, मैं तुझे वो भी जानता हूँ। I know what a deceiver you are. याकूब मैं तुझे जानता हूँ, तू धोखेबाज है, Jacob, I know you are a deceiver, मगर मैं तुझे प्यार but I love you. पर मैं तुझे प्यार करता हूँ। I love you. माँ बदल जाती है, मैं सच बताऊं, हाँ जी, माँ बदल जाती है, a mother changes. भाई बहन बदल जाते हैं, सगे भाई Brothers, बहन बदल sisters जाते हैं, change. Real brothers, sisters, they change. पति पत्नी बदल जाते हैं। Husband and wife can change. अभी एक की शादी हुई यार, बड़ा बड़ा संत दिखाई देता था यार, Recently, a man got married, seemed to be a very big saint. और एक हफ्ता नहीं बीता कि भाई जी बदल गया बिल्कुल। Not 1 week had passed by and he had ऐसे changed. से पूछो भाई तूने शादी की क्यों थी? Then ask him, why did you get married? क्योंकि ये शादी की प्रैक्टिस कर रहा था। I was practicing for marriage. तो बेवकूफ तू दूसरों की जिंदगी से खेल रहा और हाँ, यहाँ you- कर रहा अगली you- शादी में। You're playing other people's lives, you practicing for marriage. हाँ, कितने लोग मंडली में होते हैं, मंडली के नहीं होते। So many people are in the assembly, but they are not of the assembly. बहुत सीधे साधे दिखाई देते हैं, कब डायनामाइट लगा दे मंडली में पता नहीं लगता। They seem very simple, but when they can apply dynamite, you can never know. प्रभु का दास बहुत सुंदर दास है, रिकॉक करके। Pardon? एक प्रभु का दास है रिकॉक करके, Recock. हाँ, There's a man of God whose name is REOC। R-E-O. Recock. There's a man of God who's Recock. अब मुझे नहीं मालूम वो किस हिसाब से बता रहा है। I don't know how he's telling. वो कह रहा है 75% विश्वासी जो है वो मनी माइंडेड होते हैं। He said 75% believers are money minded. हाँ, वो हाथ तो स्वर्ग की तरफ फैलाते दिखाई देते हैं, They spread their hands towards heaven, मगर उनकी छिपी जड़ें पैसों के साथ जुड़ी रहती हैं। but their hidden roots are with money. हाँ, ये मुझे नहीं मालूम वो किस हिसाब से बता रहा है भाई। I don't know in what manner he's saying that. इतना बड़ा संत है, वो ऐसे नहीं बोल रहा होगा। He's a great man of God. He's not speaking just like that. और मुझे जहां तक याद है, भाई चानी को भी याद होगा, मेरी बात मतलब बुरी, शायद पूरे शब्द याद नहीं हो, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। Like I'm telling in my own words.
हाँ, चानी भाई से मेरी बात हो रही, I मतलब was talking to Chani. कि भाई बताया कि वो भाई हमारा उपयोग कर रहा है, हमारा मिसयूज कर रहा है। That this one brother is misusing us. हाँ, हमारे संग रोता है, गाता है, बताता है, वो हमें इस्तेमाल कर रहा He sings with us, he talks to us, but he's using us. है। तो मैंने कहा भाई हम कर क्या सकते हैं, And I said, brother, what can we do? हम कुछ नहीं कर सकते। Can't do anything. और ये समस्या हमारी नहीं, उसकी है। This is not our problem, that is his problem. हाँ, वो जो धोखा दे रहा है, ये समस्या वो है, उसके लिए है। The one who's deceiving, that is his problem. देखिए, किसी का नहीं पता वो कब बदल जाए। We don't know about anyone when anyone can change. आप अपने पे भरोसा नहीं रख सकते। You cannot trust in yourself. हाँ, आप अगर समझते हैं तो आप बहुत बुरी तरह धोखा खाओगे। If you think like that, you will be deceived in a big way. हाँ, आप धोखे में मत जियो, नहीं तो धोखा ही काटोगे। Don't live in deception, otherwise you will reap it. आप कभी भी परमेश्वर को धोखा दे सकते Pardon, brother? हो। आप कभी भी परमेश्वर को धोखा दे सकते हो। You can deceive God at any time. हाँ, पता नहीं हम कब बदल जाए। I don't know when I can change. एक आदमी को आप अच्छी तरह जानते हो, उसका नाम है दाऊद, डेविड। You know, man, very well. His name is David, प्रभु के दिल का आदमी था। a man after God's own heart. क्या बात है, क्या बात है। What an amazing thing! हाँ भाई जी, दिल का आदमी परमेश्वर थे। A man after God's own heart. कैसे बदल गया और कैसा भयानक धोखा दिया। How he changed and what a great deception he played. वही इतना ईमानदार उसका एक सिपाही, इतना Such उससे an भी honest- वफादार आदमी। Such an honest and faithful soldier हाँ, वो अपनी दाऊद के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। who is willing to give his life for David. प्रभु के दिल के आदमी ने उसकी जान ली। This man of God after God's own heart got him murdered. ऐसा गद्दार आदमी, ऐसा धोखेबाज आदमी हो सकता है प्रभु के दिल का आदमी? Can there be a man, a betrayer and a deceiver like David? Can he be a man after God's own heart? तो मरवा के उसकी बीवी रख ली अपने पास। He murdered him and then kept his wife as his own. क्या दाऊद पर विश्वास किया जा सकता है? Can you trust David? वो परमेश्वर के दिल का आदमी था। A man after God's own heart. हाँ, देमासस इतना एल्डर था, इतना विश्वासी। Demas, an elder, so faithful. हाँ, पॉल कहता मैं धोखा दे जाता हूँ। Pardon, brother? पॉल कहता मैं धोखा दे जाता हूँ। Paul says, I deceive. हाँ, मैं नहीं चाहता वो कर जाता हूँ। What I want to do, I जो cannot. परमेश्वर के वचन को धोखा देता है, वो परमेश्वर को धोखा देता है। He who deceives the word of God deceives God himself. इसलिए वो कहता मैं कैसा अभागा आदमी हूँ। He says, what a wretched man I am. हाँ प्रियो, तो मुझे और आपको किसी को भी अपने ऊपर बसा भरोसा नहीं। परमेश्वर के दिल का आदमी ऐसा कर सकता है। तो So you and I cannot trust in ourselves. If a man after God's own heart can do something like that, where do you and I stand? हाँ प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की मंडली के साथ वो सब कर जाते हैं जो हम खुद सोचते नहीं। We can end up doing that with the Lord and the Lord's assembly, which we can't also think or imagine. क्या आपने परमेश्वर के वचन के साथ धोखा नहीं किया? Have you not deceived the word of God? प्रभु फिर भी आपको अंत तक वैसे ही प्यार करता है। Yet the Lord continues to love you like that till the end. उसका प्यार बदल गया होता तो आज ये वचन आप सुनते नहीं होते। If his word had changed, you would not be hearing this word today. वो आपको जानता है, He knows you. वो आपको जानता है, He knows you. फिर प्यार करता है। And yet he loves you. हाँ, मती अगर पढ़ सकते हैं 26, 49, 49, 50, 49, 50। If you read Matthew 26, 49, 50, Matthew 26, 49, 50. 26, 49, 50। जी भाई, पढ़िए। हाँ, 49, 50। जी भाई। Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Jesus replied, Do what you came for, friend." Then the man stepped forward, seized Jesus, and arrested him.
और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यहूदा स्कुटिक को प्रभु कह रहा है, हे दोस्त, Judas Iscariot, the Lord is saying, friend, मित्र, friend, friend. क्या मतलब उस पर टोंट मार रहा है या Is the Lord taunting him, या सरकास्टिक वे में कह or रहा is है? he saying it sarcastically? नहीं, वो दिल से कह रहा है। The Lord is saying it from the heart. वो जानता है उसे और फिर भी कह रहा है, दोस्त है तू मेरा। He knows the truth, and yet the Lord says, my friend. हाँ, वो बड़ी सच्चाई से बोल रहा है। He's saying it with all truthfulness. मैं पापियों का दोस्त हूँ, पापियों का मित्र हूँ। I am the friend of sinners. अगर तू अब भी हाथ फैलाएगा तो मैं वही प्यार है। Even if you spread your hands right now, the same love is yours. हाँ, मेरी प्यार भरी क्षमा तेरे लिए भी है। My loving forgiveness is yours. तू अब भी मेरा दोस्त है। Even now you're my friend. तू मेरा दुश्मन नहीं है अब भी। You are not my enemy even now. बहुत दुखी था यार, काश तू इस तकलीफ में जाने से बेहतर है तू पैदा ना हुआ था। वो दिल से He कह रहा है। was in so much sorrow. Wish should not been born before you did. वो यहूदा स्कुटिक को प्यार करता था। He loved Judas Iscariot. देखिए, हालात बदलते हैं और हम बदल जाते हैं। Circumstances change, we change. हाँ, कोई हमारे मन के अनुसार बात ना करे, हमारा प्यार बदल जाता है। If somebody doesn't speak to us according to our heart's desire, if we change. हाँ, यीशु हालात के साथ नहीं बदलता। Jesus does not change with circumstances. ना उसका प्यार हालात के अनुसार बदलता। Neither is his love based on situation, circumstances. हाँ, उसमें ताकत है, वो हालात को बदल देता है। It is in his power. He can change the circumstances. हम हालात के कंट्रोल में आ जाते हैं। We come in control of circumstances. हाँ, वो जैसे हम आए हालात के कंट्रोल में उभारे गए, वैसे हमारा प्यार बस हम एकदम बाहर निकल आते हैं खाल से। Why can you repeat this last sentence again? जब हम पर कोई वार करता है, When anyone attacks us, हमारी असलियत हमारे खाल से बाहर निकल के खड़ी है। our true nature comes out of our skin. देखिए, मगर एक प्यार है प्रभु का। But there is one love the Lord has, एक मेरा प्यार है, and one love that I have. जो बदलने वाला प्यार है। My love is a changing love. हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, देख तेरा पहला सा प्यार नहीं रहा। That is why the Lord says you have left your first love. हाँ, मगर प्रभु उससे बात कर रहा, प्यार करता है उसे वैसा। When the Lord is speaking to him, the Lord loves him. तो प्रभु का प्यार जो हम में डालता है, एक हमारा प्यार है, एक परमेश्वर का प्रेम हम में डाला जाता है। There is one love the Lord has. There is one love the Lord gives in our heart, the love of God. तो दाऊद के लिए कहा, उसने परमेश्वर के प्रेम से प्रेम किया। It is written of David that he loved with the love of God. तब वो अपने शत्रुओं के पोते से, मफीबोशेत से अपने बेटे की तरह प्यार करते। Then he could love Mephibosheth, his enemy's grandson, as his own. यही धोखेबाज आदमी है वो। He is the same deceiver. उस परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे मन में डाला है। तब हम परमेश्वर के प्रेम से प्रेम करते हैं, वही प्रेम स्थायी प्रेम है। That God has poured his love in our heart, and when we love other people with the love of God, that only is static, stable love. उसी प्रेम के कारण हम बहुत कुछ कर जाते हैं उसके लिए। It is because of that love we end up doing many things. वो प्रेम हमें मजबूर करता है, वश करता है कुछ करने के लिए। That love compels us to do something. कई बार मैं आज सुबह भी हो रहा था, सोच रहा था, मतलब कई दफा ऐसा लगता है, कई लोग इतना परेशान करते हैं, जबरदस्ती परेशान करते हैं। Today morning also I was thinking there are some people, they irritate and trouble us so मैं much. बोल नहीं रहा था, God, अपने आप से बात। I was talking to myself. मैं अक्सर कहता हूँ, प्रभु या तो इन्हें उठा ले या मुझे उठा ले। And I say, I pray, Lord, either you take them away or take me away. ना तो उसे उठाता ना मुझे उठाता प्रभु। The Lord doesn't take me, neither that person. और फिर कह रहा, कल शाम को तूने क्या प्रचार किया था? And then tells me, what did you preach yesterday evening? ये सब बातें मिलाकर तेरे लिए भलाई करती हैं। That all things work together for good for you. मैं
खुद में ही फिर प्रभु कहता नहीं, इसे प्यार कर, इसके लिए प्रार्थना कर। And then the Lord says, love him and pray for him. हाँ, और प्रियो प्रभु मुझे सिखाता है, तू क्या पढ़ता है कि तेरे लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही पैदा करेंगी। The Lord says, don't you read that all things will work together for good for you? तो एक बात हमने देखी, हमें हमारा कोई भरोसा नहीं। So one thing, we cannot trust ourselves. दूसरे क्या होगा? What about others? हाँ, अब 4 पद मेहरबानी से पढ़िएगा। Now, if you read यूहन्ना 13:4, John 13:4, John chapter 13 and verse 4. भोजन पर से उठकर अपने कपड़े, ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। हाँ, I'm sorry, wait. John 13 and पानी verse लिया और 4. उनके पैर So he धोने got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. भाई वो फिर आगे पढ़ दो थोड़ा सा। After that, he poured water into a basin, began to wash his disciples' feet. तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। तो हाँ, यहाँ पर Drying them with the towel that was wrapped around him. यहाँ पर हमें यहूदियों के पास जाना पड़ेगा, उनकी प्रथाओं के पास जाना पड़ेगा। Now we will have to go to the Jews and to the Jewish customs. वहाँ पर ऐसी सड़कें नहीं थी, काफी दूर रहती थी। They didn't have roads like we have. There's a lot of dust. और जो पैसे वाले आदमी होते थे, And those who were rich, उनके जूते उतार कर वहाँ खुद नहीं धोते थे, उनके गुलाम या नौकर धोते थे। they would take off their sandals and they would not wash their feet. Their slaves, they had slaves and slaves would wash the feet. कोई यहूदी आदमी पैर यहूदी के नहीं धोता था कभी। No Jew would wash another Jew's feet. हाँ, इसके लिए तो अन्य जाति लोग रखे जाते थे। For these, Gentiles were kept. हाँ, यहूदी के पैर नहीं धोता। A Jew will not wash a Jew's feet. हाँ, नहीं तो बाइबल में लिखा, तू कभी भी अपने जाति भाइयों को गुलाम मत करना। तो ये काम बहुत घिनौना गुलाम माना जाता है। Because it is written that you shall not make the slave of your own people, and this was considered a very, very shameful job. और अपमानजनक माना जाता था। Very shameful. हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में काम का आदर नहीं होता, जात का आदर ज्यादा होता है। In our country also, work is not honored, but caste creed is honored more. कोई ऊंची जात का आपने देखा होगा कि सड़क पे कूड़ा ढो रहा है? Have you ever seen a high caste person sweeping the road? मैं वो काम को छोटा नहीं मानता, काम बहुत बड़ा है, बड़ा आदर का काम है। The work and every work is honorable work. मगर हमारी जाति हमें धर्म कहती है नहीं तू इस काम का नहीं है। But our caste, shameful caste, tells us that this work is small. मैं गलत हो सकता हूँ, मगर I may be wrong. नहीं करता, कोई नहीं करता होगा ऐसे। Pardon, brother? भाई मैं हो सकता है गलत है, मगर सड़क पर जो कूड़ा उठाने वगैरह का काम होता है, कोई ऊंची जात वाला आदमी या शायद मुश्किल से ही कोई करता हो। I may be wrong, but normally the so-called high caste person does not do the job of sweeping the roads. हाँ, तो पैर धोने का काम नहीं कर सकता था यहूदी। So in the Jewish society, no, the Jew would not do the job of washing the feet. तो इसलिए वहां पर कोई गुलाम नहीं था, सारे यहूदी थे, उनमें से when the Lord had gathered with his people, they were all Jews, and who will wash the feet? हाँ, ये छोटी जात का काम कैसे करूँगा? How do I do this job of a small caste? प्रभु ने कपड़ा उतारा, वो मैं करूँगा। And of a low caste, and the Lord said, "I'll take off my clothes. I'll do it." बात है। Can you imagine this? परमेश्वर, God Himself, इन घमंडियों के पैर धोने को तैयार is washing the feet of these proud people, इन धोखेबाजों के पैर धोने को तैयार। these deceivers. प्रियो, वो बेच चुका था, जानता था यहूदा स्कूती, उसके पैर धोने के लिए तैयार था। The Lord had, Judas Iscariot already done what he had to do, and yet the Lord washed his feet. मेरे प्यार में कोई कमी नहीं तुम्हारे लिए। There is no lack in my love for you. हाँ, तुम सोचते हो कि तुम में कोई नहीं धो सकता, मैं धोऊंगा। You think no one can wash the feet amongst you? I will wash. हाँ, मैं I will wash. इससे प्रभु की महिमा नहीं घटी, महिमा बढ़ गई।
For this, doing this, the Lord's glory did not decrease, it actually increased. आपने देखा है कहीं गुरु परमेश्वर अपने चेलों के पैर धो रहा हो? Have you ever seen a master, a God, a Lord washing the feet of his own और disciples ऐसे धोखेबाजों के दोस्त? and of such deceivers? प्रियो, क्या बात है! What an amazing thing. हाँ प्रियो, यीशु परमेश्वर है। Jesus is God. परमेश्वर का प्रभु पैर धोने से आदर घटा नहीं, And बढ़ गया। by washing the feet, his honor did not go down, the honor increased. उसकी महिमा घटी नहीं, महान महिमा बन गई। His glory did not diminish, it became even more. आप एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, Now see this. वो दास बना, दास, गुलाम। He became a slave. 500 बार दास शब्द आया बाइबल में। 500 times the word slave has come in the Bible. 28 बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में दास आया है। And 28 times it has come for the Lord Jesus. He's a slave. परमेश्वर ने अपने आप को दास कहा। God has called himself, I am a slave. दास ही नहीं, दास बनकर दिखाया। Not only that, he actually became a slave and showed it to us. हाँ, अधिकारी बन के नहीं दिखाया। Not as a master. प्रिय, अधिकारी कौन बनना चाहता है? Who wants to be a master? Who wants to be boss? ये शैतान की आत्मा हमें कहती है अधिकारी बन जा, बड़ा बन। This is the spirit of Satan that says you become master, you become the boss. जब शैतान स्वर्ग में था, लूसीफर में, When Satan was in heaven, when he was Lucifer, तब उसके अंदर आत्मा थी कि मैं स्वर्ग का अधिकारी कैसे बन जाऊं। it was this desire in him, how can I become the owner of heaven? जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी, वो दास बनने की आत्मा होगी। He who has the spirit of God has a desire to be a slave, a servant. हाँ, प्रभु के प्यार को देखिए। Look at the love of Christ. इतना सब जो जानते हुए, Even after knowing all this, जब वो उसका पैर धो रहा होगा यहूदा इस्करियोती के, when he is washing the feet of Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती जानता था कि मैं बेच आया हूँ प्रभु को, बात कर Judas Iscariot डील knew, Judas Iscariot knew I've already done the deal. और प्रभु जानता था ये डील कर आया। And the Lord knew Judas has already done the deal. प्रभु फिर भी प्यार कर रहा है, Yet the Lord loved him. फिर भी प्यार कर रहा है। The Lord loved him. प्रियो, एक बात, हमें कितना प्यार करता है प्रभु, आप सोचिए। Dear ones, how much the Lord loves us. आप इमेज नहीं कर, कल्पना नहीं कर सकते। You cannot imagine it. हाँ, मेरा जैसा धोखेबाज Deceiver. क्या कहता प्रभु, क्या कहता? What does the Lord say? पहला यूहन्ना 3, 1 और 2 पढ़िएगा। First John 3, 1 and 2. First John chapter 3, 1 and 2. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हाँ, वो कह रहा देखो यार, देखो कैसा प्रेम किया, कैसा। See what great love the Father has lavished शब्द on नहीं us. है, वहां पर कह रहा परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, यहाँ कह रहा कैसा प्रेम किया। ऐसा कैसे कैसे कर रहा है, मगर शब्द नहीं है, भाषा कमजोर पड़ गई, शब्द बहुत कमजोर पड़ गए, उसमें है नहीं कि कोई बता सके कि ये कैसा प्रेम है। उसे ऐसा और कैसा प्रेम करके बता रहा है। It says, for God so loved the world and sees what great love. So there's no words which can describe the greatness of the love of God. भाई, हमारी भाषा बहुत कमजोर है, उसके पास Our language is very weak to express the magnitude of this love. एहसास कीजिए उसके प्रेम, एहसास कीजिए इन शब्दों You can only feel the greatness of his love. पढ़िएगा 3 और 1, पहला यूहन्ना 1 से 2। So 1 and 2. कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण हम संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, see what, हाँ भाई पढ़िए। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। See what great love the Father has lavished on us, we should be called the children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are the children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.
हम संतान होंगे नहीं, है भी संतान। We will not be children, we are children. हाँ, ये धोखेबाज आदमी उसकी संतान है, जो कभी धोखा नहीं देता। This deceiver, he can deceive anytime. He is the child of कह God. क्या रहा है? And what is he saying? क्योंकि बस इतना सा जानते हैं। We know only this much. इतना जानते हैं How much? कि उसके समान होंगे, That we shall be like him. और क्या होंगे ये भी प्रकट नहीं हुआ। And what more we will be has not yet been revealed. मैं ये क्या बात कह रहा है? And हम I'm saying समान होंगे, बस इतना ही से जानते हैं। that we shall be like him, this much we know. वो कह रहा और क्या होंगे अभी प्रकट नहीं हुआ, बोला नहीं है। And what we will be has not yet been made known. अरे और इससे ज्यादा कुछ हो गया आप। We will be more than what we are, cannot imagine. बात है। What an amazing thing. कहता है वो जिन दासों ने मेरी सेवा की है उनकी कमर बांधकर परमेश्वर खड़े उनकी दास। He says the servant that have served him, I will gird my loins, and the Lord himself will gird his loins and serve them. अभी तो पता ही नहीं हमें हम क्या होंगे। We don't know yet what we will be. हाँ, तो इतना ही पता है कि हम परमेश्वर के समान होंगे। This we know, we shall be like him. आप सोच सकते हैं Can you imagine मेरा सा आदमी, a man like me? तूने बहुत कुछ किया है वेस्ली, मगर मैं तुझे वैसे ही प्यार करता हूँ, वैसे ही प्यार। You have done so many things, Wesley, but I still love you. फिर मैं एक बात बताऊं, बड़ा बनने की बड़ी इच्छा, बड़ी खतरनाक इच्छा है। I tell you, the desire to be big in this world, this desire is a very dangerous desire. ये क्रूस की शक्ति द्वारा कुचल डालो इसे। It must be crushed by the cross of Christ. प्रभु मुझे अपना प्रेम दे, मैं उस प्रेम से लोगों को प्रेम कर सकूं। Oh Lord, give me your love that I may love others by that love. मेरे ख्याल में दुनिया के श्रेष्ठ सुसमाचार के प्रचारकों में D.L. मूडी का नाम आता है। I believe that one of the best preachers of the gospel in the world, one of them was D.L. Moody. ओहो, मैं आपको नहीं जानता उसने कितना जबरदस्त काम इंग्लैंड में, यूरोप और अमेरिका में जगहों पर amazing What an amazing work he did in England and in America. मैं तो कह रहा हूँ मैंने सुना नहीं इसके मुंह से, उसके वो नहीं सुने, मगर मैंने पढ़ा है उसे, और पढ़ते पढ़ते मैं भूल जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो किताब में से निकलकर बाहर मेरे सामने खड़ा हो गया। I would be reading him, and while reading, it would appear to me that he's standing out of the book and talking to me. इतना प्रभावशाली आदमी था, so effective. एक बड़ी सेमिनरी में वो मेरे ख्याल में प्रोफेसर भी रहा, मतलब, और वो पढ़ाता था, मतलब he was a professor in a big seminary also, and he used to teach there. वो मतलब दुनिया में मशहूर आदमी, मतलब in the Moody Bible Institute, and he used to teach there. तो वहाँ इंग्लैंड से कुछ लोग आए, और मतलब वो इंग्लैंड के लोग बहुत वैसे रहते थे बड़े से, तो उनके कहीं प्रचार विचार करके आए होंगे, मुझे ठीक याद नहीं है, मगर उनके पैर जूते बिल्कुल गंदे हो गए। And the people from England had come. Now we know that they are much more conservative people, but when they had come from preaching after some time, the shoes were really dirty. और सुबह फिर उन्हें मीटिंग के लिए जाना था, बहुत सारे जूते थे, थके हुए थे। And again they had to go back to the meeting. They were very tired. तो उसमें से शायद उनके लीडर ने कहा यार हमारे मेहरबानी से जूते साफ करवा देना। And the leader among them, he said, please get our shoes clean. तो मूडी भाई ने वहाँ जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा, भाई आप ये जूते साफ कर दो इन लोगों के इस सुबह। And Moody told the students who were there, please clean these shoes. एक स्टूडेंट ने बोला, one student said, हम वचन सीखने आए हैं, जूते साफ करने नहीं है। we have come here to learn the word, not clean shoes. पूरी रात इतने सारे लोगों के जूते D.L. मूडी सुबह तक साफ करता रहा। For so many people, the whole night D.L. Moody spent and cleaned their shoes. और प्रभु ने उसे क्या नाम दिया? Polished their shoes. What a name the Lord gave Moody. इतनी सामर्थ्य से कहा है, And so much power. इतनी सामर्थ्य से इस्तेमाल किया उसे।
So much power the Lord used him. प्रियो, कोई गुलाम बनने से या दास बनने से कभी छोटा नहीं हुआ। No one becomes small by becoming a slave or a servant. तुम ये बाद में समझोगे मेरी बात कि मैंने जो आज कर रहा हूँ। This you will understand later what I am doing today. हाँ, पत्र से कह रहा, देख मैं तुझे साफ करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलना है तो ये सब चीजें निकालनी पड़ेंगी तुझे। Peter, the Lord said, I have to clean you because if you want to walk with me, these things have to be removed. हाँ, तो आइए हम थोड़ा सा आगे मत्ती 25 और 26 में चलते हैं। Can let us go to Matthew 25 and 26. मत्ती 25 और 26। जी भाई। His master replied, you wicked, lazy servant, so you knew that I have... सॉरी 26-25 होगा सर। 26-25। जी भाई। Then Judas the one... तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। Then Judas, the one who would betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi. Jesus answered, you have said so. और प्रभु ने कहा, भाई तुम में से एक आदमी है जिसका हाथ मेज पर रखा हुआ है। The Lord said, one of you whose hand is on the table, वो मेरे साथ जो रोटी खाएगा, he will eat bread with me, जिसे मैं ये रोटी दूंगा डुबो के, to whom I will give this bread. हाँ, जो मेरी रोटी खाता है वो मुझ पर लात उठाता है। He who has eaten bread with me has lifted up his foot against me. हाँ, और ये भविष्यवाणी भजन संहिता 41:9 में दाऊद के प्रभु ने बहुत पहले कर दी थी कि जो मेरी रोटी खाता है वो मुझ पर लात उठाएगा। And the prophecy the Lord had made a long time in Psalm 41. The Lord says, he who ate bread with me has lifted up his foot against me. ऐसे लोगों के हाथ प्रभु की मेज के पास रखे हैं, तैयार खड़े हैं। Such people's hands are ready to eat bread from the Lord's table. हाँ, वो पाप के साथ इस रोटी में सम्मिलित हो जाएंगे। They will take part in this bread with sin in their heart. विरोध और जलन और बैर रख के इसमें सम्मिलित। They have got bitterness, they have got jealousy, they have got ego, and they're taking part in it. मैं पूछा किसके लिए कह रहा, पूछ ले भाई। Ask to whom the Lord is, for whom the Lord is saying this. सबने अपने आप को जांचा And examined each examined himself. और कहा, मैं हूँ क्या प्रभु? And said, Lord, is it I? यहूदा इस्करियोती ने कहा, मैं हूँ क्या? And Judas also said, is it I? हाँ, यहूदा जानता था मैं हूँ। Judas knew it is I. और प्रभु जानता था ये है। And the Lord knew it is Judas. प्रभु फिर भी प्यार करता। Yet the Lord loved him. विरोध, जलन, बैर सारी चीजें रखकर आज भी प्रभु की मेज में हाथ बढ़ाओगे, प्रभु जानता है। Keeping aside all jealousy, bitterness, ego, when you spread your hands before the table, remember the Lord knows you. प्रभु कह रहा है कि अगर मैं ना दूंगा तो मेरी तेरी कोई सहभागिता नहीं है इसमें। And the Lord says, unless I wash your feet, you have no fellowship with me. हाँ, जांचने वाली बात कही थी प्रभु ने उससे पहले। The Lord had told about examination before. हाँ, मगर उसने ईमानदारी से अपने आप को नहीं जांचा। But he did not examine himself honestly. वो जानता था कि मेरे अंदर विरोध है, जलन है, बदले की बात है, सब कुछ है। He knew I have revenge, I have enmity, and I have pride in my heart. क्या हुआ? What happened? पहले तो शैतान ने उसके मन में विरोध, जलन, बैर सब कुछ भरा हुआ था। First, Satan had put all this jealousy, bitterness, and opposition in his heart. हाँ, मेरी बात नहीं मानी गई। My thing was not accepted. हाँ, हमें तो तुझ जानते हैं। They think us to be low. हाँ, प्रियो, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ। One thing I want to tell you, dear ones. यहूदा इस्करियोती ने सब कुछ मन में रखा। Judas Iscariot kept all these things in his heart. और ये खेल खेलता रहा। And kept on playing this game. 3.5 साल खेल खेलता रहा। For 3.5 years. प्रभु का वचन उसे काटता तो था। The word of God used to convict him. मगर वो हर बार टालता था। But each time he would turn it away from it. पहले मन में पाप बसाया। First he put sin in his heart. फिर खुद शैतान उसमें बस गया। And then first sin dwelt in his heart, and then Satan came and lived in him.
फिर उससे कहा अंधेरे का टाइम था, अंधकार का टाइम, and that was the hour of darkness. फिर उसे अंधकार में ले गया And he took him out into the darkness और फिर हमेशा के अंधकार में उसे धकेल दिया। and threw him into the everlasting darkness. फिर वो ऐसा भयानक खेल मत खेलना। Don't play this terrible game. प्रभु आपसे प्यार करता है इसलिए बात करता है। The Lord loves you. That is why he speaks to you. अगर ये सब विरोध, जलन, हीन भावना, पता है अगर मेरे अंदर हीन भावना होगी तो मैं दूसरे को लज्जित करके अपनी हीन भावना को संतुष्ट करूंगा। So if I have an inferiority complex in my heart, I will try to put down another person to somehow satisfy myself. हाँ, जबरदस्ती। प्रियो, हमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, किसी की जात, हमारी एक ही जात है, हम सब पापी हैं। Dear ones, there is no one big or small among us. Only one caste. We are all of Christ. हाँ, दुनिया में दो ही जात है, एक है तो सब पापी, मगर एक के पाप माफ हो गए और एक के पाप नहीं माफ हुए। There are only two castes in the world. All are sinners. The two castes are on one whose sins are forgiven, on the other whose sins are not forgiven. वो यहूदा इसको तुझे क्यों बोल रहा था? इसलिए बोल रहा था कि यहूदा को प्यार करता था। Why is he speaking to Judas? Because the Lord loves him. हाँ, और आप ऐसा ना करिए कि पाप के इस ऐसा खेल खेले, नहीं तो शैतान पूरा कंट्रोल ले लेगा आपका। Don't play with sin. Otherwise, it will take full control. मैं आखिरी बात करता हूँ। I'll say one last thing. आज दो चार बातें करूँगा। A couple of things. हाँ, देखिए पतरस जब जाना परमेश्वर के प्रेम से, वो प्रभु को प्रेम करने लगा। When Peter started loving the Lord with the love of God, तो वो भी क्रूस की मौत से मरा और कहने लगा मुझे सीधी मौत मत, क्रूस पर टांगना, उल्टा टांगना। he also died on the cross, and he said, "Don't put me straight up, but upside down." जो एक औरत के सामने, एक लड़की के सामने 3 बार झूठ बोल गया, वो आदमी अब जान देने के लिए खड़ा हो गया। The same man who denied the Lord in front of a maid servant now stood up to give his life for Christ. प्रभु हमें प्यार कर, प्रभु क्या हो गया? मैं प्रकाशित वाक्य में देखते हैं जहाँ पर 28 बार ये शब्द आया, मेमना, परमेश्वर का मेमना करके शब्द आया। The Lord, it shows in Revelation chapter. Can you repeat that, brother? भाई 28 बार परमेश्वर का मेमना करके शब्द आया यीशु के लिए। In Revelation, 28 times for Jesus, the word has come, Lamb of God. हाँ, वो यहूदा का शेर था जो मेमने की तरह जिया और मेमने की तरह बलिदान हो गया। He was the lion of the tribe of Judah who lived and died like a lamb. हाँ, देखिए ये परमेश्वर की बड़ी अद्भुत, परमेश्वर की कहना चाहिए अमेजिंग प्यार है, कहना चाहिए अद्भुत प्यार है। This is the amazing love of God. यहूदा 2 जीवन जीता था। Judas was living 2 lives. एक मसीह मंडली के साथ, मसीह और मंडली के साथ, One with the assembly and with the assembly of Christ, और दूसरा संसार और शैतान के साथ जीता था। and the second with the world and Satan. और इसके 2 रिश्ते थे। And he had 2 relationships. और ये एक बड़ी, जो 2 नावों में चलता वो अपना अंत सोच ले। And the one who wants to go in 2 boats will fall. फिर जब मैं बाइबल की बात नहीं मानता, मैं बाइबल को, परमेश्वर के वचन को धोखा देता हूँ। When I do not accept the word, भाई थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा। हेलो, आवाज कम आ रही है? हाँ, थोड़ी कम आ रही है भाई। हाँ जी, अब बोलिए। हाँ, जो परमेश्वर के वचन को धोखा देता है वो परमेश्वर को धोखा देता है। The one who deceives the word of God deceives God himself. प्रभु मैं 3 बार क्या आपका 300 बार इनकार कर दूंगा एक दिन। Oh Lord, what 3? I'll deny you 300 times, 3 million times. हाँ, मुझे अपने आप पर जरा भी भरोसा नहीं है। I don't trust myself at all. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything. मगर तेरा प्रेम अगर मुझे सामर्थ्य देगा तो प्रभु जिसे मैं सोच नहीं सकता वो कर जाऊंगा। But Lord, if your love will give me power, I will do that which I cannot imagine. प्रभु दया करके अपना प्यार मेरे अंदर डाल दे, उड़ेल दे, भर दे। Oh Lord, pour out your love in my heart. प्रभु मेरे अंदर तो, प्रभु मैं आदम की संतान हूँ, धोखेबाज की संतान हूँ, मैं याकूब की संतान हूँ।
Lord, I am the child of Adam. I am a deceiver. प्रभु मुझ पर दया करते, So Lord, have mercy on me. मैं तेरे प्यार से तुझे प्यार कर सकूं। I may love you with your love. मेरा प्यार तो धोखेबाज का प्यार है प्रभु। My love is a deceitful love. प्रभु जी दयालु पिता मुझ पर दया कर। Oh Lord, have mercy on me. प्रभु मैंने शब्दों से बहुतों को माफ किया, मगर अब भी बहुतों के लिए मेरे दिल में भारीपन है। Lord, I have given forgiveness with my lips to many, but even now in my heart there is so much heaviness. अब मैं ये हाथ तेरी तरफ बढ़ाने जा रहा हूँ, मेज की तरफ बढ़ाने जा रहा हूँ। Oh Lord, I am going to spread my hands towards the Lord's table. प्रभु सचमुच में मैंने दिल में अभी तक उन लोगों के लिए विरोध और जलन बाकी है प्रभु। Even now there is jealousy, bitterness against people in my heart. प्रभु तेरा प्यार मेरे में उंडेले जाएगा, तब मैं उन्हें माफ कर पाऊँ। Oh Lord, please, please pour your love in my heart. हे प्रभु मुझ पर दया कर दे। Lord, have mercy on me. प्रभु मुझ धोखेबाज पर दया कर दे। Have mercy on a deceiver like me. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Come, let us pray. Come, let us pray.